company. Okay, so before start our workshop, let me introduce to our company JS Technova. JS Technova is founded in Lucknow in India. It's leading IT service and web development startup. Our mission is empower business with cutting digital age solutions, and our vision become a globally recognized technology solution and provider. And our core values are innovation, collaboration, quality, and client-centric approaches. Yes, there are lots of reasons that why people want to choose GS Technova company. Because we have expertise in diverse technology domains. We have experienced developers, designers, and analysts, and scalable solution also. And yes, of course, we have proven track record of successful project deliveries. The next is what we offer here. We offer here different types of development services like as web development, mobile app development, machine learning, and AI. We are also giving here creative and analytics services like data analytics, UI UX design, video editing, and content creation. We are also giving here educational services like as industrial training, workshop, and ERP services. Now here, I would like to share with you the name of some industries with whom we had worked. So these are IT and software, e-commerce, education and e-learning, healthcare and media technology, finance and banking, media and entertainment. And yes, I am glad to share with you that our company had worked for many more companies. So Snehadhara and Archithos are two examples among these companies. So here I want to tell you about something of Snehadhara. Snehadhara is an NGO foundation. We needed to create an interactive landing page and we created interactive and responsive page for it. As a result of it, they gained an online presence and their reach increased to the new increased follows to the contact of their causes. And yes, with Happy Hour Work, the founder of Snehadhara has praised to our team and he said that it's been pleasure collaborating with someone as talented as guys you are. And thank you for making such a beautiful website in very congested period. Now here, I would like to share with you our some text expertise. So in this way, I first share here our programming language, which is Java, Python, JavaScript, and Swift. Now the second is our framework and libraries are React Angular, Django, and Flutter. In this way, now the third is our development tools, which are GitHub, AWS, Firebase, and Docker. And the fourth, our designing tools, which is Figma, Adobe, XD, and Photoshop. And yes, I'm glad with share with you that our company is giving opportunity for growth, like looking for collaboration, partnershiping, and investment, and expanding our reach globally with strategic alliance and creating long-term business value. It's my pleasure to announce here the name of CEO and founder of GS Technova company. Mr. Amit Kushwaha sir is a CEO and founder of GS Technova. He has mechanical engineer, he has strong visionary leadership, and he has strategic business document commitment to excellence, and he is community builder too. Now here, I would like to announce the name of co-founder of GS Technova. So Mr. Sonu Kushwaha sir is a co-founder of GS Technova. He has experienced teacher, passionate mentor, and he has taught more than 10 schools, and he has tech driving teaching technology, and he is motivated too. Now I'm glad to share with you the name of CTO of GS Technova. Yes, Mr. Shubham Chauhan sir is a CTO of GS Technova company. He is full stack developer and he has been lots of master skills like React, Python, Java, and automation database. Hey everyone, if you're really interested with us, so you can contact us and wanted to any query. So you can contact us through the website, which is www.gstechnova.in. And yes, you can contact us through our email, which is support@gstechnova.in. And yes, you can contact us through our phone number, which is 6388735208. And one other number is here 888 Thank you. Okay.
Now this is the time to invite here our special speaker of this workshop. So yes, I requested to call here to Mr. Ashutosh Singh sir, who is a software engineer at Teradata, and he has 12 years experience. So sir, please grace this workshop with the golden words. Thank you. Okay, thanks Pooja for such introduction, and thanks Ayush, Sonu, and Harsh for inviting me to this workshop. So I think most of the can everyone just go on mute? I think if you have any questions, you can post on the chat. So, yeah. Hi, I am Ashutosh Singh. I have been a software engineer professionally for 13 years, been doing coding a bit longer than that, like from school time. So I have seen the advent of JavaScript, Python, machine learning. In fact, when I started my career in machine learning, then deep learning was just coming, and it started from there when I joined my first company in CDAC. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सबके सब ये यूपी के ही आसपास के हैं, तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं. चीजें थोड़ी आसानी रहेंगी और समझ में भी आ जाएगा. ठीक है, तो एक सेकेंड. इनेबल स्क्रीन शेयरिंग सेटिंग्स. ओके, स्क्रीन शेयर करने में जोहो मॉडिफाई सेटिंग्स. मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीन नहीं शेयर होगी. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ. एक सेकंड. Yeah, everyone mute your mic. If anyone have any question or anything to say in the chat box now. Yeah. Don't always raise the hand unnecessarily. Yeah, just post your questions on chat and I will pick it up from there. Okay, ठीक है. हाँ, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ शायद. स्क्रीन phone is okay. Screen share, entire screen share और आपको पिन भी करना पड़ेगा शायद. मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट रिप्लाई ऑन चैट. यस, ओके ओके, गुड. तो हाँ, सो ये लिंक्डइन प्रोफाइल क्या शेयर करें. तो बेसिकली मैं वर्क करता हूँ टेराडेटा लैब्स, टेराडेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में. इसके पहले मैं था सीडैक मुंबई में. तो सीडैक मुंबई में मैंने 5 साल जो काम किया था वो मेरा था बेसिकली आधार के बायोमेट्रिक्स में. मैंने आइरिस वाले प्रोजेक्ट पे काम किया था कि आइरिस से कैसे आदमी को, बंदे को पहचानना है. उसके ऊपर उसी टाइम डीप लर्निंग एकदम स्टार्ट हो रही थी और उसी टाइम मैं बेसिकली रिसर्च करता था. कोडिंग भी करते थे लेकिन बट वो कोडिंग रिसर्च के रिलेटेड ज्यादा थी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड कम थी. फिर मैंने ज्वाइन किया यूडेसिटी. सो यूडेसिटी में मैं 2 साल था. वहां पर मैं इनका पहले वन ऑफ द लाइक एशिया पैसिफिक रीजन का वन ऑफ द फर्स्ट मेंटर्स था. यूएस की ऑनलाइन लर्निंग कंपनी. अभी इसको एसेंचर ने ले लिया. तो इनके कोर्सेज आते थे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सेल्फ ड्राइविंग कार, इन सबके. तो मैं इन सबका मेंटर था. उसके बाद फिर मैं इनका इंडिया वाला रीजन देखता था पाइथन और मशीन लर्निंग के लिए. फाइनली मैंने 2019 में टेराडेटा ज्वाइन किया था एज अ मशीन लर्निंग रिसर्चर. बट 1 साल बाद फिर मैंने स्विच कर लिया टुवर्ड्स बैकएंड डेवलपमेंट. तो वहां पर मेरा बेसिकली काम है
एक बहुत बड़ी डेटा पाइपलाइन है टेराडेटा। तो टेराडेटा एक समझ लो कि डेटा वेयरहाउसिंग सोल्यूशन है। तो इसके अराउंड 3000 के आसपास कस्टमर्स हैं। वो लोग हमसे मशीन लेते हैं और उस पे डेटाबेस की क्वेरीज रन करते हैं, और हमारा काम है वो जो क्वेरीज रन करते हैं तो उसमें कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना रैम यूज हो रहा है, कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, उसका सारा डेटा हम सारी साइट से उठाते हैं, अराउंड 3000 साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनको प्रोसेस करना होता है। फिर उसको हम लोग देते हैं सेल्स टीम को कि आपके कस्टमर्स कैसे यूज कर रहे हैं, बिलिंग टीम को कि वो कैसे बिल कर रहे हैं, और कस्टमर सपोर्ट टीम को कि अगर किसी साइट में कोई इशू आ रहा है तो वो इशू किस वजह से आ रहा है। तो सारा डेटा हम यूसेज का डेटा, तो इस डेटा को हम लोग कहते हैं टेलीमेट्री डेटा, कि कस्टमर जो है वो किसी सिस्टम को कैसे यूज कर रहा है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो मेरा बेसिकली काम यही है। फिर तो 5 साल का मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस था, 2 साल पढ़ाने का था, फिर अभी यहाँ पर बैकएंड का पूरा हो गया है। तो ऑलमोस्ट एक वैलिड मतलब डोमेन रहा है मेरा। मैंने किसी एक टेक्नोलॉजी पर हमेशा काम नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आपको मतलब जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं जावा काम करना चाहता था, मैं आज तक जावा पे काम नहीं कर पाया। मेरी पहली लैंग्वेज थी मैटलैब। कहीं से इको आ रहा है, प्लीज आप म्यूट करिए। सो मैटलैब, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, बीच में डॉटनेट भी था, सी शार्प भी था, ये सब थे। तो कई लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था। खैर, आज का जो है कि क्योंकि आज आप लोग आए हैं, संडे को 2 घंटे दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका कुछ सही से कुछ काम हो जाए, मतलब कि कुछ यूसेज आ जाए। तो आज के दिन हम लोग बात करेंगे बेसिकली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग है क्या, इनकी हिस्ट्री, इसमें चीजें टेक्नोलॉजी बैक साइड में काम कैसे करती हैं, और आपको भी बेसिक आइडिया हो जाएगा जब आप आज के बाद कभी आप चैट जीपीटी या एलएलएम या किसी और मशीन लर्निंग एआई या एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करो तो आपको आइडिया रहे कि किस बारे में बात हो रही है। ओके, तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे आज के दिन। तो मेरी वॉइस गड़बड़ा रही है? सही आ रही है सर। सही आ रही है, ओके, एक बार सही आएगा, फाइन। सो आप में से मतलब आई एम श्योर कि कुछ लोग को आइडिया होगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, और मतलब शायद कुछ लोगों ने कोर्सेज भी किए होंगे, बट हम इसको एकदम स्क्रैच से लेकर चलेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे। और शुरुआत में थोड़े डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अभी अगर आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास बेसिकली सीएस के जो बच्चे होते हैं उनके पास बेसिकली यही आता है कि वो जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में। ओके, एक सेकेंड, शेप रिकॉग्निशन बंद करना है, और हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में इसमें लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जाते हैं, आप एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, जैसे कि आपने जावा सीख ली, आपने पाइथन सीख ली, ओके, आपने हो सकता है कि जावा स्क्रिप्ट सीख ली, तो आप फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से ही अब सब कुछ होने लगा है। आपका बैकएंड भी बन जाता है नोड.जेएस में, फ्रंट एंड बन जाता है आपका रिएक्ट में या टाइप स्क्रिप्ट में, ये सब चीजें। तो आपको एक लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद जाकर उसके टूल्स बनाने लगते हैं। जावा में आप बेसिकली वेब सर्विसेज बनाते हैं जो कि एंटरप्राइज में यूज होती हैं। जावा आज भी सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग, सबसे ज्यादा जॉब वाली लैंग्वेज है। तो अगर आपके पास जावा है तो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, सबसे ज्यादा। मतलब क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी उसमें रहेगी बट मोस्टली क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पाइथन में जाते हैं तो पाइथन में हम लोग बेसिकली बनाते हैं बैकएंड, इसमें मोस्टली बैकएंड रहता है। जावा में कुछ फ्रंट एंड भी हो जाता है जेएसपी का यूज करके, बट मोस्टली बैकएंड रहता है। पाइथन में आपका मोस्टली ही बैकएंड रहता है पाइथन लैंग्वेज में। इसमें हम लोग बैकएंड के लिए स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, वेब सर्विसेज बनाते हैं, ये सब करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में आपका सब कुछ हो जाता है, बैकएंड, फ्रंट एंड जैसे आपको HTML CSS लिखनी है तो उसके लिए आप रिएक्ट लिखते हैं, वो बाद में उसे कन्वर्ट कर देता है HTML CSS में और बैकएंड से भी कनेक्ट कर लेता है। तो ये
बेसिकली ये एक पाथ रहता है, ठीक है। अभी तक ये पाथ था क्योंकि आपको मोस्टली दुनिया को सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, टूल्स बनाने थे। और ये क्यों जरूरत थी इसकी भी मैं कहानी आपको छोटी सुना देता हूं कि जब कंप्यूटिंग फील्ड आई तो कंप्यूटिंग फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या थी। सबसे पहले कंप्यूटिंग फील्ड आई है आपकी वर्ल्ड वॉर 2 से, तो उस टाइम वॉर चल रही थी, तो इन्हें वॉर को करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी थी बहुत ज्यादा। उसके लिए वहां पर वो कंप्यूटिंग फील्ड आई कि हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर मतलब था जो कंप्यूट कर सके, ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सके। क्योंकि इसके पहले लोग जो कंप्यूटर होते थे वो हाथ से करते थे, पर्सन होते थे, इन्हें एक मशीन चाहिए थी जो बहुत ज्यादा फास्ट कर सके। तो अगर आपने मूवी देखी होगी, एक एनिग्मा के ऊपर मूवी है, मैं नाम भूल गया हूँ क्या था उसका, द इमिटेशन गेम, ठीक है। तो उसमें वो एक तरह से पहला कंप्यूटर बनाते हैं एलन ट्यूरिंग लोग। तो ये जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। और तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी। तो पहले सिर्फ आए कैलकुलेशन करने के लिए तो कंप्यूटर बने उसके लिए। फिर जब लोग कंप्यूटर बनाने लगे और वॉर वाली चीजें खत्म हो गई, जब 1940 से 1950 55 तक, सॉरी 1950s तक आपकी जब वॉर जब चल रही थी, खत्म होने लगी, अब इसके बाद लगा कि भाई अब हमने कंप्यूटर तो बना लिया है। एक सेकंड, मेरी ये स्क्रीन कहाँ चली गई? चलो अभी तक कुछ लिखा नहीं था। तो 1950s में जब हमने कंप्यूटर बना लिया था तो अब उसका क्या करें, तो इन्होंने कहा चलो इसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो जो पहले रिसर्चर्स थे, जो पहले यूजर्स थे कंप्यूटर के, वो थे आपके साइंटिस्ट, क्योंकि उन्हीं को कंप्यूटर चलाना आता था, ठीक है। तो इसीलिए जो पहली लैंग्वेज आई थी वो आई थी पास्कल, ये सब लैंग्वेजेस थी। पास्कल, फोल्ट्रान क्या थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये सब चीजें थी। जब साइंटिस्टों ने यूज कर लिया, अब उसका चलो थोड़े पब्लिक के लिए लेकर आया, तो उन्होंने बनाने शुरू किए सॉफ्टवेयर। बट अब दिक्कत क्या थी, सॉफ्टवेयर से पहले उनको जरूरत थी हार्डवेयर बनाने की। पहले उन्हें कंप्यूटर बनाने थे, ठीक है। तो पहले उन्होंने हार्डवेयर बनाया, हार्डवेयर के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर लिखने थे। जब सॉफ्टवेयर लिखने थे तो वही सॉफ्टवेयर लिखे जा सकते थे जो इस हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाए। इसके लिए लैंग्वेज बनी थी आपकी सी। इसीलिए आज भी जितने भी, जब भी आपको किसी रोबोटिक या किसी चीज का काम करना होता है तो आपको सी या C++ में लिखना पड़ता है। फिर सी का एक एडवांस वर्जन आया C++ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो सी की खामियों को दूर करता था, खामियों को। अब C++ बन गई, तो ये लेकर आया आपका ऊप्स लेकर आया। क्योंकि अब लोग, जनरल लोगों के पास, मेरी स्क्रीन भी शेयर है, स्क्रीन भी शेयर दें, एक सेकेंड। ओके, अभी दिख रही है? ओके, ठीक है। तो जब C++ आया, फिर C++ लेकर आया ऊप्स का कॉन्सेप्ट, तब भी इसमें एक दिक्कत थी कि अभी भी जो प्रोग्रामर्स थे बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे थे। इसका सोल्यूशन आया जावा, ठीक है। जब जावा सोल्यूशन आया तो जावा क्या लेकर आया? जावा लेकर आया आपका गार्बेज कलेक्शन। ये शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं भी, तो गार्बेज कलेक्शन लेकर आया। तो गार्बेज कलेक्शन से प्रोग्रामर्स की 90% दिक्कतें दूर होने लगी। क्यों? जब आप C या C++ में कोडिंग करते हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे इतनी रैम चाहिए, मैं ये पॉइंटर बना रहा हूं या कुछ बना रहा हूं तो मुझे इतनी रैम चाहिए, उसमें वेरिएबल की मैं डेटा सेव करूंगा। बट अगर आपने उसे जब मेमोरी एलोकेट कर ली और उसे डिलीट नहीं किया तो वहां पर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पर आपकी मेमोरी फुल हो जाती थी। गार्बेज कलेक्शन क्या करता था, उस जो मेमोरी आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको फ्री कर देता था। तो अब आपके प्रोग्राम क्रैश होना बहुत कम हो गए। तो 90% आपकी प्रॉब्लम्स गार्बेज कलेक्शन ने दूर कर दी, ठीक है। अब जब जावा आया तो अब लोग चाहते थे कि अब उसी टाइम पर आपके पास 1991 में इंटरनेट चल रहा था। स्क्रीन शेयर हो रही है, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। अगर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है किसी को तो कैसे, मैं पिन कर देता हूँ। पिन तो मुझे नहीं दिखा रहा है। आप लोग की स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? स्क्रीन शेयर है, ओके, ठीक है, ठीक है। उसी टाइम 1990s में इंटरनेट आया तो अब लोगों के टर्मिनल पर, मतलब कि घर में कंप्यूटर जो है उस पर वो कोई भी प्रोग्राम रन करने की कोशिश करने लगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व उसी टाइम पर आपका आया www, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी वजह से आपके पास एक ब्राउजर में कोड चलाने के लिए आपके पास लैंग्वेज आई जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, पाइथन भी इसी टाइम आ गई थी, लेकिन पाइथन को इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। फिर जावास्क्रिप्ट आई, जावास्क्रिप्ट में बड़ी दिक्कतें थी 2002-3 में। सर स्क्रीन शेयर करिए। ओके ओके, तो 2002-3 में जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जे क्वेरी कर एक फ्रेमवर्क आया जिसने जावास्क्रिप्ट, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर कीजिए। कुछ करना पड़ेगा क्या मुझे इसके लिए? वर्चुअल बैकग्राउंड एंड पिन इट, ओके। हाँ, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाकर पिन कर लेना स्क्रीन को, ठीक है, सॉरी। फिर आई जे क्वेरी ने जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करी। अब ये सब चल रहा था, फिर इसी टाइम 2007-8 में आ गई आपके पास Node.js। Node.js ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? अभी तक जब आप वेबसाइट्स बनाते थे, या इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी तक जब आप वेबसाइट्स बनाते थे तो वेबसाइट में आपको बैकएंड लिखना पड़ता था जावा में या किसी और लैंग्वेज में, पर्ल में, ठीक है, और फ्रंट एंड आपको लिखना पड़ता था, फ्रंट एंड के लिए आपको यूज करनी पड़ती थी जावास्क्रिप्ट। Node.js ने क्या किया, बैकएंड भी आप जावास्क्रिप्ट में लिख दो, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आ गया था फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब 2008, 9, 10, 11 तक लोग बहुत ज्यादा वेबसाइट्स बनाने लगते थे। सारी आपकी जो वेब की बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर और लिंक्डइन, ठीक है, याहू, जीमेल, ठीक है ना, गूगल, ये सब आपकी इसी दौर की है, इंटरनेट वाले दौर की है। अब ये सब चलने लगी, लोग यूज करने लगे, यूट्यूब, ये सब आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रंट और बैकएंड में यूज करके करने लगे, ये सब आपकी चलने लगी खूब सारी। अब क्या हुआ, अभी तो वेबसाइट बनने लगी, इसी टाइम पर एक कहानी चल रही थी कि आपके पास मशीन लर्निंग भी बैकएंड में चल रही थी 1950 से ही, क्योंकि इन कोडिंग के पहले यूजर थे आपके साइंटिस्ट थे, तो उन लोगों ने मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ले आए थे। बट वो जितनी बार ट्राई करते थे, कुछ चलता था, कुछ छूट जाता था, कुछ चलता था, कुछ छूट जाता था। बीच बीच में बहुत ज्यादा आता था कि अब 10 साल में हम लोग एआई को अचीव कर लेंगे, एजीआई को होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि हम बना देंगे। बट उसके बाद तुरंत सारी प्रोग्रेस रुक जाती थी, कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता था। कभी हमारे पास कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, कभी हमारे पास डेटा नहीं था, कुछ नहीं था। अब इसी टाइम की कहानी है, 1950 से जब चलता आ रहा था, तो ये जो वैलीज आ रही हैं एआई के या मशीन लर्निंग के, उसमें इनको हम लोग कहते थे एआई विंटर। मतलब ठंडी में क्या होता है, लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो इसे कहते थे एआई विंटर। इसी टाइम पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा था जीपीयू का, ठीक है। जीपीयू पहले भी थे, एनवीडिया 1995 1996 से जीपीयूज बना रही थी, बट वो बना रही थी गेमिंग के पर्पज से, ठीक है। फिर एक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के अंदर योशुआ बेंजियो करके था, और बेंजियो और जेफ हिंटन ने क्या किया, इनके अंदर ये लोग टीचर प्रोफेसर थे, इनके एक बच्चे ने उठाकर जीपीयू से यूज करके उसे मशीन लर्निंग में यूज किया, और एक मॉडल लेकर आया CNN। 2012 में इसने, मतलब जो ब्रेक थ्रू कहते हैं कि ब्रेक थ्रू लेकर आ गया। एक्यूरेसी आपकी मशीन लर्निंग की हेल्प से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वहीं से फिर आपका 2012 में पाइथन वहीं से आपकी उड़ गई। तो इसने तो बेसिकली एनवीडिया की जो लैंग्वेज होती है क्यूडा, उसमें कोड लिखा था, बट बाकी लोग को कोड लिखना था, तो उन्होंने पाइथन यूज करना शुरू कर दिया, यहीं से पाइथन आपकी बढ़ गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपके पास क्या क्या आता है, ठीक है। अभी अगर आप, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक फील्ड चल रही थी, अब इसी के साथ आपकी फील्ड जनरेट शुरू होना करी, क्योंकि इंटरनेट से डेटा इतना ज्यादा हो गया, पैदा होने लग गया। लोग जब वेबसाइट पर जाने लगे, तो बिलियंस ऑफ लोग अगर एक वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो वो बिलियंस ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं। जैसे आप फेसबुक पर गए, आपने कहीं पर लाइक किया, आपने कहीं पर क्लिक किया, आपने कोई वीडियो देखा, आपने कोई वीडियो कितनी देर देखा, क्योंकि जब बिलियंस ऑफ यूजर्स अब किसी प्रोडक्ट को यूज करने लगे, तो उसका डेटा जनरेट होने लगा, तो डेटा हमारे पास बहुत तेजी से आने लगा, और इसी डेटा से इंसाइट्स को निकालने के लिए हमारे पास फील्ड आ गई, क्या, डेटा एनालिसिस।
तो जो एक सीएस वाले बच्चों के पास एक ऑप्शन रहता था खाली और खाली सॉफ्टवेयर डेवलपर का, वहां पर अब आपके पास डेटा एनालिसिस वाली फील्ड आ गई है कि अब वो इसमें भी जा सकते हैं। पहले भी ये काम होता था, ये काम 1970s में भी होता था, क्योंकि कंपनियां तब भी थी, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। जैसे मान लो वॉलमार्ट है, जैसे अभी तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो गई, जो यूएस की वॉलमार्ट है, तो भाई उसके स्टोर तो 1970s से चल रहे हैं, उनके यहाँ लाखों लोग आते हैं डेली, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डेटा कैसे निकालेंगे? तो डेटा निकालने के लिए उनके पास पहले डेटा साइंटिस्ट होते थे, मतलब साइंटिस्ट होते थे बेसिकली, जिनको प्रोबेबिलिटी मैथ्स ये सब आती थी, ठीक है। उनके पास डेटा आता था, वो उसको यूज करते थे और उससे बताते थे कि अब आपका इस मंथ में इतना ज्यादा कंजम्पशन होने वाला है, आप अंडे खरीद के रख लो, या चादरें ज्यादा बिकेंगी, या कुछ और ज्यादा बिकेगा, या जूस ज्यादा बिकेगा, तो आप उसके हिसाब से खरीद लो। पहले साइंटिस्ट होते थे, बट क्योंकि अब इंटरनेट की कंपनीज आ गई सब, तो उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर भी चाहिए थे, और वो भी चाहिए थे जो एनालिसिस कर पाए। तो वहीं से हमारी फील्ड निकल कर आई डेटा एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट कर लिया जाता था। अब इसी के आसपास 2-3 फील्ड और आ गई। क्या आ गई? डेटा से कोई टाइप कर रहा है क्या? डेटा एनालिसिस, गेस्ट यूजर, परमिशन क्यों है? क्या मैं इसकी परमिशन रोक सकता हूँ? एक सेकेंड, परमिशन नहीं आ रही है। हाँ, डेटा एनालिसिस, फिर अभी बताता हूँ हाँ कहाँ से आती है। तो डेटा एनालिसिस का क्या काम था? आपके पास कहीं से यूजर का डेटा आया किसी इंटरनेट की कंपनी से, आपको इस डेटा को क्या करना है? मल्टीपल सोर्सेस से, तो कहीं पर डेटाबेस से आ रहा है, कहीं पर लॉग से आ रहा है, जो आपके लॉग जनरेट होते हैं वहां से आ रहा है, कहीं पर सर्वे से आ रहा है, या फिर फॉर्म से आ रहा है। तो तीन तीन तरह का मान लो आपके पास डेटा आ रहा है, आपको इन तीनों डेटा को क्या करना है? एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करने के बाद आपको इनको क्लीन करना है। हेलो सर, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन का। तो एक्चुअली आप इंटायर स्क्रीन शेयर ना करके एक स्पेशल विंडो शेयर करेंगे, आई थिंक सबको दिखेगा। आई थिंक आप पूरा इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर कर रखा है असल में। सर एक विंडो शेयर कर दीजिए, जो पीपीटी आप जो पढ़ा रहे हैं उसका एक विंडो शेयर कर देंगे तो आप सारे बच्चों को दिखेगा। इंटायर स्क्रीन ना शेयर, पीपीटी नहीं है ये, वही जो सर, ये आपका जोहो का ही वो है, व्हाइट बोर्ड है। ये जोहो का व्हाइट बोर्ड है, ये स्क्रीन नहीं शेयर हुई है यहाँ, ये खुद का दिया हुआ उसका पर्सनल व्हाइट तो बोर्ड। सर कोई MS पेंट वेंट का यूज करके सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। देखता हूँ एक सेकेंड। आशुतोष नोटबुक, रिलेशन, एड पेज, ओके। सर कि मैंने हेलो लिखा है। यस सर, इट्स विजिबल। नाउ स्टार्ट। ठीक है, ओके, चलो एक सेकेंड, ड्रॉ, ठीक है। चलो हाँ, हम कहा थे कि मान लो कि हमारे पास अब डेटा एनालिसिस वाली जो फील्ड थी, डेटा एनालिसिस वाली फील्ड थी, इसमें क्या था आपके पास? मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस से डेटा आ रहा है, लॉग्स फाइल से डेटा आ रहा है, और फॉर्म से डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इन तीनों डेटा को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता था? एग्रीगेट, मतलब इन तीनों जगह से डेटा को लेकर आना और उन्हें एक जगह पर डालना। फिर उसके बाद आपको करना पड़ता था क्लीन। क्लीन में क्या स्टेप्स होते थे कि आपके डेटा में कुछ में वैल्यूज है, कुछ रोज में वैल्यूज नहीं है, तो आपको कौन सी वैल्यूज रखनी है, वहां पर वैल्यूज मिसिंग क्यों है, ठीक है।
उनको मैप करना, क्योंकि डेटा आपके पास अभी 3 जगह से आ रहा है, तो आपको तीनों को मैप करना कि इसमें जो रो है वो लॉग की किस लाइन से मैच कर रही है, फॉर्म की किस लाइन से मैच कर रही है। इसे सब हम लोग कहते थे क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लीन करने के बाद फिर आप उस पर करते थे एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में आप क्या करते थे, अब आपके पास डेटा आ गया, आपके पास क्लीन डेटा है, अब आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि नेक्स्ट मंथ की सेल ज्यादा होने वाली है। अब एग्जांपल, एमआर रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है मार्केट में कि जाकर डॉक्टर से बात करो कि आप हमारी दवाई लिखो, बट सिर्फ डॉक्टर से नहीं, जाकर आप मेडिकल स्टोर से बात करो कि कौन सी दवाई इस एरिया के जो डॉक्टर हैं वो कौन सी दवाई लिख रहे हैं ज्यादा। डोलो की जो सेल होगी बढ़ जाएगी। तो ये एक मैंने ह्यूरिस्टिक बताई है, बट इसी चीज को डेटा भी वेरीफाई करता है कि अराउंड फरवरी टू मार्च के बीच में आपकी दवाइयों की बिक्री, डोलो की बिक्री बढ़ जाती है, पैरासीटामोल की बिक्री बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है। तो ये एनालिसिस करना आपके पास क्लीन डेटा होने के बाद ये काम होता था, बट आपका काम यही रुकता नहीं है। एनालिसिस के बाद आपको इसको एक रिपोर्ट में बनाकर जो आपका मैनेजर है, जो आपका सीईओ है, जो सीटीओ है, जो भी आपके हायर लेवल पर है, उसको बताना पड़ता था। अब ये काम डेटा एनालिसिस वाला, ये कोडिंग है पूरी, कि मल्टीपल स्पेस जगह से डेटा लेकर आना, एग्रीगेट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, ये सब आप कोडिंग से करते हो। बट आपका जो हायर अथॉरिटी है उसको तो रिपोर्ट, उसको तो कोडिंग से मतलब नहीं है। तुम उसे क्या बताओगे कि मैंने इस पर ग्रुप बाई लगा दिया SQL का, या मैंने कोई और फंक्शन लगा दिया इसका, उसे तो मतलब नहीं। उसे चाहिए कॉन्क्रीट एनालिसिस। उसे आपको जाकर रिपोर्ट देनी है कि भैया कि फेब में डोलो खरीद के रख लो, या क्योंकि पतझड़ आ रहा है तो आई इन्फेक्शन बहुत होंगे, तो आई इन्फेक्शन होंगे तो सिप्लॉक्स की लेके रख लो, कि क्योंकि लोगों की आंखें लाल होंगी तो उन्हें आई ड्रॉप चाहिए होगा, तो पहले से लेकर रख लो। तो उसको आपको खाली ये बताना है। तो डेटा एनालिस्ट का ही काम होता है इन रिपोर्ट को, इसको लेकर एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करना। रिपोर्ट में आप क्या करते हो, टेक्स्ट लिखते हो, बट मोस्टली आप क्रिएट करते हो प्लॉट्स। ये देखो पुराना डेटा ये बता रहा है कि भाई फरवरी में सेल बढ़ जाती है, ये इसकी ग्रोथ रेट है, इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। तो आपको ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं और आपको इनसाइट्स देनी पड़ती है क्या डेटा है। ठीक है, अब ये काम कौन करता था, एक डेटा एनालिस्ट करता था। इसी टाइम पर आपके पास प्रोफाइल आ जाती है डेटा साइंटिस्ट की। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट एनालिसिस वाला काम छोड़कर ये जो मल्टीपल है, अभी यहां पर मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो डेटाबेस से आ रहा है, या लॉग से डेटा आ रहा है, और फॉर्म से डेटा आ रहा है। यहां पर आपके पास 15 डिफरेंट डेटाबेसेस से डेटा आ सकता है। तो इन सबको इंक्लूड करना और एक पाइपलाइन बनाना कि डेटा कैसे आएगा, कैसे क्लीन होगा, पाइपलाइन कि डेटा कैसे आएगा, डेटा कैसे क्लीन होगा, ये सब बनाना, ये सब काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस डेटा साइंटिस्ट भी कर सकता है, डेटा एनालिस्ट भी कर सकता है, बट डेटा साइंटिस्ट का एक काम और करता है, यहां पर ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स भी लगा देता है। मतलब डेटा आया, उस डेटा से ये ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करेगा कि आगे क्या होना है, ये खुद ही एनालाइज करेगा। तो डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग मॉडल्स की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेटा एनालिस्ट को होनी चाहिए बट उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। बट डेटा साइंटिस्ट को मेन काम है पाइपलाइन लेकर आना। ठीक है, पाइपलाइन बनाना कि मल्टीपल जगह से डेटा आना, क्लीन करना, कैसे करना, ये सब चीजें। इसके बाद आजकल पिछले 2-3 साल से एक बहुत चल रहा है, वो है ML ऑप्स। ML ऑप्स क्या है, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ठीक है, ML ऑप्स का काम क्या है। अब ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है बहुत छोटा लग रहा है। जब यहां पर आपके पास TB ऑफ डेटा आएगा पर डे, जैसे हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस करते हैं अराउंड 3 TB ऑफ डेटा पर डे। प्रोसेस करना मतलब डेटा आ गया, उसको प्रोसेस करके एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो जब ये वाला काम करते हैं तब यहां पर अभी
MLOps प्रोफाइल क्या है? ये बस इन दोनों का मर्जिंग है कि आपको हाईली स्केलेबल पाइपलाइन बनानी है। हाईली स्केलेबल, डेटा आएगा, पाइपलाइन चलती रहेगी, डेटा प्रोसेस होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्केलेबिलिटी के ऊपर हम कोई और कभी लेक्चर कर लेंगे, बट बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपको क्यूबरनेटिस, ठीक है, हडूप तो उतना ज्यादा यूज करते नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हडूप का एक अल्टरनेटिव है स्पार्क, अपाचे स्पार्क। तो ये सब टूल्स आने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये MLOps वाला काम होता है। तो अभी आपके पास ये रहता है। अभी इसी में अब लोगों ने कुछ बीच में बना दिया था कि जिसको ML मॉडल्स बनाने आते हैं उसको हम लोग कहते हैं ML इंजीनियर, ठीक है, क्योंकि उसे मशीन लर्निंग का काम आता है। अब चैट जीपीटी के बाद से हमारे पास जेन AI इंजीनियर हो गए हैं, जिनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे काम करना आता है। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, LLMs क्या होते हैं। जेन AI हो गया है, और उसके बाद फिर हमारे पास जेन AI इंजीनियर हो गए हैं, या फिर अब लोग अपने आप को सिंपल कहने लगे हैं AI इंजीनियर, ठीक है। AI इंजीनियर जो मैंने लिंक्डइन पर देखे हैं, जो उनके हैं, उनको बस में मोस्ट काम ये आता है करना, उनको मॉडल्स का आइडिया होता है, कैसे यूज करना है वो आता है। बट जो सबसे ज्यादा हायर हो रहे हैं, ठीक है, वो हो रहे हैं ये वाले MLOps। क्योंकि आप एक टूल बना सकते हो, बट अगर आप उसको 1 लाख लोगों तक ले जाओ और आपका टूल पहले ही ब्रेक हो जाए, आपका टूल आपने जो बनाया है वो 1000 यूजर भी यूज ना कर पाए, तो फिर आपका टूल बेकार है। तो MLOps क्या करते हैं, आपके इस टूल को उठाकर लेके जाते हैं मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो इनको इसकी तो इंफॉर्मेशन रहती है, बट इनको ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि सर्वर कैसे यूज करने हैं, API कैसे बनानी है, ये सब चीजें कैसे करनी है, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने आपको वो बता रहा था कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। ओके, एक आया, there is question. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ MLOps पाइपलाइन। हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली पहला कंपोनेंट होता है आपके पास कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स क्या करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं मल्टीपल डेटा सोर्सेज से, ठीक है, और मल्टीपल डेटा सोर्सेज होते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा सोर्सेज, अब आपके पास डेटा आ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा लेक। लेक क्यों कहते हैं कि इसमें बस डेटा आ गया है, इसमें स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अभी उनके बारे में बात करेंगे क्या होते हैं, बट इसमें हर जगह हजारों जगह से डेटा हमारे पास इसके अंदर आ गया। अब ये जो लेक आई है, इस लेक से फिर हमारे पास होते हैं, आप ये कर दो इंजेस्ट सर्वर। इंजेस्ट सर्वर क्या करते हैं, लेक से डेटा उतारते हैं और उसको फिर ये लोग प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस में बहुत सारा काम हो सकता है, उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उससे कुछ वैल्यूज निकालकर कहीं और सेव करना, ये सारे काम प्रोसेस करने के बाद फिर आपके पास एक आप कहीं पर लेकर आते हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लेकर आते हो। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मतलब एक सिंगल टेबल, ठीक है। फिर आप अपने ML मॉडल्स को यहां से डेटा देते हो, ठीक है। अब चीज क्या है कि यहां पर क्योंकि आपके पास TBs में डेटा, तो आपके पास एक सर्वर होंगे, तो जब आप इंस्टेंसेस होते हैं आप उनको यूज करते हैं। सैलरी क्या होता है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट का, देखो आप बेसिकली स्टार्ट करोगे डेटा एनालिस्ट से, अगर आप डेटा साइंटिस्ट पे भी जाते हो तो सैलरी
आपकी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आप किस कंपनी में जा रहे हो, प्रोफाइल से डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, आप मास रिक्रूटर में जाओगे तो आप चाहे डेटा साइंटिस्ट हो चाहे डेटा एनालिस्ट हो, आप शुरुआती करोगे 3.54 से। आप एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे, जैसे टेरा डेटा में इस टाइम बेस सैलरी है 16 लाख, तो अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप 16 लाख से ही स्टार्ट करोगे, चाहे आप प्रोग्रामर हो, चाहे आप कोडर हो, चाहे आप एसक्यूएल असिस्टेंट हो, चाहे जो। ठीक है, तो सैलरी आपकी डिपेंड करती है कंपनी, आप कौन सी कंपनी में जाते हो, हर कंपनी में काम होता है। तो बट आप ये मान के चलो कि आप 4 से 5 से तो मिनिमम स्टार्ट कर ही सकते हो, 4 से 5 ये आपका रहेगा ही रहेगा। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दिक्कत क्या है कि जब आप स्टार्ट करने जाओगे तो आपको डीएस से पहले आनी चाहिए। डीएस से है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद जब आप राउंड क्लियर कर लोगे फिर जाकर आपसे पूछेंगे कि आपने डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग में क्या किया है। रोड मैप की बात कर लेते हैं। रोड मैप चलो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली क्या होता है, हर जगह पर अभी आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, बट आपको पाइथन बेसिकली बेसिक पाइथन आनी चाहिए, इसके ऊप्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फंक्शन लिखना ये सब आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको इसके 2 लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, पैंडास, ये दोनों आनी चाहिए। और विजुअलाइजेशन के लिए आप सीबॉर्न यूज कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद अब आप डेटा एनालिसिस करने लग जाओगे। फिर आपको मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरी है एसके-लर्न। ठीक है, एसके-लर्न मशीन लर्निंग के लिए है, बट इसी के पैरेलल अगर आपको डीप लर्निंग करनी है तो आपको लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी पाइटॉर्च। ये सब लाइब्रेरीज है। ठीक है, यहां तक पाइथन है, फिर यहां से आपके पास लाइब्रेरीज है। पाइटॉर्च आपके पास आ जाएगी डीप लर्निंग के लिए। और अभी तो इतना आसान हो गया है कि जेन एआई के लिए आपको NumPy सिपॉन के बाद बस आप ओपन एआई की कोई भी लाइब्रेरी यूज कर लो, ओपन एआई की लाइब्रेरी, ये सब लाइब्रेरी है, आप इन सब से काम कर सकते हो। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है, इतना होता है कैसे होता है। बट पाइथन अच्छे से आनी चाहिए। और ये सब आपको, अगर आपने NumPy और pandas पर एक बार काम कर लिया तो sklearn तो बहुत ही ईजी है। पाइटॉर्च में कुछ नई चीजें हैं डिस्कस करने को, बट इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा खाली आपको फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन में क्या काम होता है ये पता होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? अगर आपको कुछ मशीन लर्निंग में करना है तो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच कुछ नहीं करना है। देखो 2 तरीके हैं सीखने के, या तो आप इसको फॉलो करो। ठीक है, पाइथन, NumPy, pandas, सीबॉर्न, sklearn, पाइटॉर्च। एक तरीका ये होता है, मतलब इसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच। और इसमें आप लोग शुरुआत से आपको कुछ बेस नहीं, आप धीरे धीरे बनाते जा रहे हो, सीखते रहोगे। बट इसमें क्या होगा कि जब तक आप यहां पर आओगे ना, तब आपका जो मोटिवेशन होगा वो मर चुका होगा। 1-1.5 हफ्ते लग चुके होंगे, 2-3 हफ्ते आप लोग प्रैक्टिस करी नहीं होगी तो मन नहीं कर रहा होगा। दूसरी अप्रोच क्या है कि प्रॉब्लम उठाओ। ठीक है, पाइथन आप सीख लो, ये बेसिक है, पाइथन आना चाहिए, पाइथन आप सीख लो, पाइथन बेसिक है। फिर आप कोई प्रॉब्लम उठाओ, कोई भी प्रॉब्लम उठाओ जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास अभी एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास रिसीट्स आ रही हैं जिसमें लोग बिल लगाते हैं कि भाई देखो मैंने यहाँ पर खाना खाया, मैंने इस ट्रेन से ट्रेवल किया, और उसका बिल लगाते हैं। अभी क्या होता है, वो बिल लगाते हैं, वो बिल जाता है आपके उसके मैनेजर के पास। मैनेजर बिल देखता है, जो उसने डिटेल्स भरी है कि चलो भाई 400 रुपए का किराया हुआ था, वो दोनों चीजें देखता है और कहता है ठीक है अप्रूव्ड। ठीक है, अब ये काम है मैनुअल। अभी मशीन लर्निंग एआई इस चीज पर आ चुकी है कि ये काम ऑटोमेटिक हो सकता है।
तो मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट आया है कि आप इस काम को ऑटोमेटिक कर दो, कि मैनेजर के पास वही जाए जहां पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी बोले कि नहीं मैं उतना श्योर नहीं हूं कि इस पे 400 लिखा है कि 900 लिखा है, क्योंकि भाई कुछ लोग 400 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग 900 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 लिखा है कि 9 लिखा है, जब उसे कंफ्यूजन हो तभी जाए मैनेजर के पास, नहीं तो ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दे। तो इससे क्या होगा कि मैनेजर का भी टाइम बचेगा, फाइनेंस वालों का टाइम बचेगा। तो अब ये प्रोजेक्ट आया, तो आप कोई प्रॉब्लम उठाओ, अब कहोगे मुझे अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मुझे जैसे रसीदें बनानी है, तो अब मैं क्या देखूंगा, मुझे पाइथन आती है, तो मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा भाई कि इमेज को रीड कैसे करते हैं पाइथन में। ठीक है, आपको पाइथन आती है, आपने पाइथन से कोड से नेट पे गए, सर्च किया हाउ टू रीड इमेज इन पाइथन, ठीक है, फिर आपने उसका कोड लिखा, देखा कि आपने फाइल आपके एक फोल्डर में कहीं पर इमेज पड़ी थी, आपके पाइथन कोड ने उस इमेज को रीड किया और यहां पर डिस्प्ले कर दिया। अब आपको ये आ गया, अब आपने एक काम कर लिया, अब आपने एक स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि रीड टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, रीड टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, कि आप टेक्स्ट कैसे रीड करोगे। फिर आप गए इंटरनेट पर, आपने देखा 10-15 ब्लॉग पढ़े, 3-4 वीडियो देखे, बोला अच्छा ऐसे करते हैं। फिर आपने आकर कोडिंग करी, जिसने इमेज उठाई, इसमें से रीड किया और देखा कि इसका ये नाम है, इसमें इतने रुपए खर्च हुए हैं। अब उसने इमेज रीड कर ली। अब आपको क्या करना है, अब आपने कहा ठीक है इमेज रीड कर लिया है, अब मुझे ये मैच करना है कि इसने जो डिटेल भरी थी, जैसे इसने भरा था कि भाई 400 रुपए का टिकट है, अब मुझे ये मैच करना है कि उसने जो फॉर्म में डिटेल भरी थी, फॉर्म में उसने जो डिटेल भरी थी 400 रुपए, और ये जो यहाँ पर 400 रुपए, यहाँ पर जो भी अमाउंट लिख कर आ रहा है ₹X, ये दोनों सेम है कि नहीं। फिर आप गए नेट पर, आपने देखा कि भाई कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने जो फॉर्म भरा होगा उसकी एंट्री किसी डेटाबेस में गई होगी। तो आपने जाकर देखा भाई कि पाइथन से रीड डीबी फ्रॉम पाइथन, आपने देखा, फिर से 10-15 ब्लॉक पढ़े, कोड देखा, आपने प्रोग्राम लिखा। अब आपका ये प्रोग्राम यहां से इमेज लेता है और डेटाबेस से डेटा लेता है, और इसने देखा, और आपने यहाँ पर कंपेयर किया कि यहाँ पर 400 लिखा था, बट रसीद में आपके पास सिर्फ 200 रुपए का बिल था। ठीक है, आपने देखा मैच नहीं कर रहा है, तो आपने एक क्या कर दिया, ईमेल करना है आपको कि भैया कि ये फ्रॉड है। तो आप क्या पढ़ोगे, हाउ टू ईमेल फ्रॉम पाइथन। फिर आप गए 10-15 ब्लॉक पढ़े, देखा ईमेल कैसे करते हैं, और आपने यूजर को ईमेल भेज दिया। तो अगर आपको स्क्रैच से करना है तो आप ये तरीका यूज करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जाओगे पाइथन, ऊप्स, लिब्रा, नमपाई, पेंडा, सीबॉर्न, एसक्यूएल, पाइटॉर्च, डीएल, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 6 महीने बीत चुके होंगे और आपको मजा खत्म हो चुका होगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो चुका होगा। तो बेटर है एक प्रॉब्लम उठाओ, रियल वर्ल्ड की कोई भी उठाओ, जो आपके मन में है, जो आपके मन में नहीं है, किसी और ने कर रखी है, वो उठा लो, वो करो, और फिर आप उसको सीधे सीधे करके सॉल्व करने लगो। पाइथन तो आपको आती है ना, कोड पढ़ना तो आता है ना। तो अब इसमें मेन काम है कि अब आपको खाली पाइथन बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। किसी ने कोड लिखा है पाइथन में, वो अगर आप दूसरे का कोड पढ़ना सीख जाओ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जब भी ब्लॉग पढ़ोगे, कुछ देखोगे, आपको सारी चीजें सॉल्व होती रहेंगी धीरे धीरे। तो जब आप इस तरह काम करोगे तो आपको पता है ठीक है मेरा एक स्टेप हो गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है। तब आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा। तो मेरा तो तरीका ये है कि आप कैसे शुरू करो, और बात करते हैं फिर इस पे। ओके, व्हाट आर सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, एलएलएम्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, वहां से जनरेटिव एआई तक कैसे आते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी नेक्स्ट 1 आवर में सेशन में। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 12 PM से वापस स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग के बेसिक्स, और वहां से जनरेटिव एआई कैसे आता है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। शोलू चौहान आपका हैंड अप है,
कोई क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज मतलब 12 बजे वापस ज्वाइन करना, क्योंकि अब हम लोग बेसिकली मशीन लर्निंग की बात करेंगे, हर चीज काम कैसे करती है। और लास्ट में शायद आपकी अटेंडेंस भी मॉनिटर हो रही है, तो सर्टिफिकेट उसी हिसाब से मिलेंगे। ओके, लेट्स कनेक्ट बैक इन 5 मिनट्स। मैं लीव करके मतलब कि बस वीडियो स्टॉप और म्यूट कर रहा हूँ, बाकी मैं हूँ यहीं पर। बाकी किसी क्वेश्चन हो तो पोस्ट करते रहे, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। सो 12 PM पे वापस आता है। The key question are out of the key components of a machine learning model. ओके, बच गए हैं तो हाय, वेलकम बैक। तो पानी वानी सबने पी लिया हो तो ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ लॉजिस्टिक्स हैं कि जो लास्ट तक रहेगा सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा। और अभी हम लोग कई चीजें डिस्कस करने वाले पूरी मशीन लर्निंग के बारे में, कि कैसे सारी एल्गोरिथम्स काम कैसे करती हैं, बेसिक लेवल पर उनका वर्क कैसे करता है। आज हम कोडिंग नहीं देखेंगे, बट कुछ एग्जांपल्स जरूर देखेंगे कैसे काम करते हैं ये सब चीजों को, और कैसे आप डिफरेंट टूल्स या कुछ और चीजों को यूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करना चाहे तो कर ले। एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, ओके। इंसर्ट स्पेस, चलो एक सेकेंड। अच्छा, जा नहीं रहा एक सेकेंड, ठीक। ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, क्या चेंज हुआ है इनके पैराडाइम में, मतलब सोचने के तरीके में कैसा चेंज हुआ है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? वॉल्यूम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सर नहीं दिख रही है, अभी आपने शायद हटा दिया, अभी तो दिख रही थी। एक्सेलरेशन अभी
शेयर हो रही है सर, हाँ आ गई। ओके। सो अभी हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में अंतर क्या है और कैसे फिर धीरे धीरे चीजें बदली हैं। तो बेसिकली जब आपका प्रोग्राम होता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। तो मतलब कि आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। प्रोग्राम आपका काम करता है किसी एल्गोरिथम पर, और एल्गोरिथम क्या होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे आपको लखनऊ में पॉलिटेक्निक से चारबाग जाना है, तो आप क्या करेंगे, पॉलिटेक्निक पर जाएंगे, वहां पर मेट्रो स्टेशन के अंदर जाएंगे, टिकट लेना है, टिकट लेने के बाद प्लेटफॉर्म पे जाना है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़नी है, और जब चारबाग आ जाएगा तो ट्रेन का दरवाजा खुलेगा, आपको ट्रेन से बाहर उतरना है, प्लेटफॉर्म से नीचे आना है, एग्जिट लेना है, फिर चारबाग स्टेशन जाना है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। प्रोग्राम आपका यही एल्गोरिथम को कोडिंग में इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका है। या दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है इनपुट दिया है मैंने 2 और मुझे इसका डबल करना है, तो मेरे पास तरीका क्या हो जाएगा, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 आया तो 3 टाइम्स 2 6 आ गया, 4 आया 4 टाइम्स 2 8 आ गया। ठीक है, तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। देखिए आपको पता है कि नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोग्राम क्या लेता है, एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट लेता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और वही आपका इनपुट आउटपुट हो गया। एल्गोरिथम लगाकर उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेसिंग लगाकर आपने उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। अब लोग ये काम कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग 50 साल से कर रहे हैं। कोई एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई सीक्वेंस बनाते हैं और उसमें इनपुट आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, बट इंसान क्योंकि आलसी होता है, उसने कहता है यार ये हम ही एल्गोरिथम बनाए। ठीक है, इंसान का मेन काम क्या था, एल्गोरिथम बनाना, क्योंकि मशीन इनपुट ले रही थी, मशीन आउटपुट दे दे रही थी, इंसान का काम था एल्गोरिथम बनाना। उसने कहा ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो इंसान बेसिकली आलसी होता है, तो वो चाहता है चीजों को इग्नोर करना। वो कहता है कि अगर मेरे पास इनपुट आए 2 3 4 और इसका मुझे आउटपुट मिल जाए 4 6 8, तो इसके बीच में क्या काम करना है ये मुझे कोई बता दे, तो मुझे एल्गोरिथम भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो इसी चीज को ढूंढने के लिए ये लेकर आया मशीन लर्निंग। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब में क्या होता है, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और उसको आउटपुट देना। ठीक है, ये होती है नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें प्रोसेस का तरीका उसे खुद लिखना पड़ता है। जैसे आपने अमेजन पर चेकआउट किया, कोई कुछ सामान खरीदा, तो क्लिक करो वहां पर, तो जब कोई यूजर चेकआउट पर क्लिक करेगा तो उसके पेमेंट वाले पेज पर जाएगा, वहां पर उसको डिटेल्स इनपुट करनी है। वो जब पेमेंट डिटेल्स दे देगा तो मैं पेमेंट वाली कंपनी के पास जाऊंगा, मैं एसबीआई के पास जाऊंगा कि ये लो, ये रही पेमेंट की डिटेल्स, मुझे इसमें से 100 रुपए काट के दे दो। यूजर ने 100 रुपए का मुझे ऑथराइजेशन दिया है कि आप 100 रुपए का सामान ले सकते हो। तो वो देखेगी कि हाँ ये जो डिटेल दी है वो सही है कि नहीं है, फिर कहती है हाँ या ना। अगर उसने हाँ किया है तो पेमेंट हो जाती है। जब पेमेंट हो जाती है तब अमेजन कहता है कि ठीक है, अब मुझे सामान अपने वेयर हाउस से निकाल करके यूजर के घर तक पहुंचाना है। ये हो गई उसकी जिम्मेदारी। तो प्रोसेस भी पता होनी चाहिए थी। ठीक है, बट इंसान कहा कि नहीं, इसको हम ढीला कर देते हैं कि ये वाला काम भी मशीन लर्निंग कहीं से खुद सीख ले। तो अगर उसने ये इनपुट दिया है तो 2 4 3 6 4 8, तो मशीन का काम है ये सीखना कि यहां पर आपका मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। बट यहीं पर अगर आपका इनपुट सेम है बट आउटपुट चेंज हो जाए 4 9 16, तो इसका मतलब क्या, प्रोसेसिंग चेंज हो गई। और प्रोसेसिंग चेंज हो गई तो अब यहां पर आपका मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं है, यहां पर आपका पावर ऑफ 2 है। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16। और मशीन लर्निंग का बस ये काम है कि उसने कहा कि यार तुम इनपुट ले लो, आउटपुट ले लो, मुझे बस ये दे दो, ये निकाल कर दे दो कैसा। तो पहले हम काम खुद एल्गोरिथम बनाते थे, अब हम मशीन को कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको मशीन लर्निंग में देता हूं कि जब मैंने मशीन लर्निंग शुरू करी थी 2011-12 में, तो क्या होता था हमारे साथ कि मान लो कि मुझे ये इमेज है एक, ठीक है, ये फोटो है, मुझे इस फोटो में ट्रायंगल ढूंढना है।
तो इस फोटो में ट्रायंगल ढूंढने का तरीका क्या था कि इसको हम 3 अलग अलग फिल्टर से, फिल्टर आप ऐसे समझ लो जैसे कैमरे के फिल्टर्स होते हैं, या फिर आपने जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था तो उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते थे, तो वो फिल्टर इमेज को ग्रीन कर देते थे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर देते थे, या इस तरह के फिल्टर्स हमारे पास। तो हमारे पास जैसे फिल्टर होते थे, वो फिल्टर कुछ ऐसे होते थे, +1 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -1 मैट्रिक्स होती थी बेसिकली। इस मैट्रिक्स को हम इस पूरी इमेज से पास करते थे। तो जब हमने इसे 3 फिल्टर से पास किया तो मेरे पास एक इमेज में सिर्फ और सिर्फ ये लेफ्ट वाली लाइन आती थी, एक इमेज में राइट वाली लाइन आती थी, एक इमेज में सिर्फ और सिर्फ बॉटम वाली लाइन आती थी ट्रायंगल की। ओके, ठीक है। तो जब ये तीनों लाइन आती थी तो हम चेक करते थे कि ये ट्रायंगल है कि नहीं। बट आप ट्रायंगल ऐसे तो चेक कर नहीं सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि एक इमेज में ये तीनों लाइनें तो हैं, बट एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां पर है। ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, तो क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है। बट अगर हम खाली इन्हीं के बेसिस पर जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये ट्रायंगल है। तो हमें और क्या चेक करना होता था? हमें फिर एल्गोरिथम लाइन बताते थे, चेक करो कि ये जो 2 लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, तब जाकर आपके पास एक ट्रायंगल बनता है। तो ये हमने एल्गोरिथम बनाई। पहले हमने एल्गोरिथम क्या बनाई कि इस तरह के हमने फिल्टर्स बनाए, इस तरह के मल्टीपल फिल्टर से हमने इमेज को पास किया, फिर हमने उनके पीक्स की या फिर जो भी उनके एंड पॉइंट से उनकी डिस्टेंस निकाली, तब हमने जाकर बोला कि हाँ यहां पर क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें ये सब काम करना पड़ता था। ये हमारे पास यही है कि आपके पास एल्गोरिथम आपको खुद लिखनी पड़ती थी, एल्गोरिथम खुद लिखनी पड़ती थी। और आपके पास ट्रायंगल के लिए इस तरह के फिल्टर है। मान लो आपको स्क्वायर निकालना है तो आपके फिल्टर्स बदल जाते थे, +1 +1 +1 0 0 0 -1 -1 -1। तो हर इमेज के लिए एक फिल्टर, नया फिल्टर बनाओ। ये आपको प्रैक्टिस से डिफरेंट चीजें ट्राई करके ऐसे करना होता था, तब जाकर आप किसी मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम पे काम कर पाते थे। तो मशीन लर्निंग आई, मशीन लर्निंग ने क्या बोला? हमने क्या बोला? इनपुट है, आउटपुट है, ये काम कंप्यूटर ढूंढे, मैं नहीं ढूंढूंगा। तो अब क्या आया? अब आया आपने उसे इनपुट दे दिया कि ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर है। तो यहां पर ट्रायंगल है ट्रू 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 और ये फॉल्स। ये आपका हो गया इनपुट, ये आपका हो गया आउटपुट। ठीक है, अब आपने कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट दिया और आउटपुट दिया। अब कंप्यूटर का काम है ये निकालना कि इसके बीच में ट्रायंगल है कि नहीं है। जो प्रोसेसिंग वाली चीज है ये अब कंप्यूटर निकालेगा, और यही है आपकी मशीन लर्निंग। आपको ये एल्गोरिथम बनाने की कोशिश जरूरत नहीं करनी है, ये काम अब ये करेगा, और यही काम मशीन लर्निंग करती है। बस आपने सोचने का तरीका ही बदल दिया। पहले हम एल्गोरिथम लिखते थे, अब हम इनपुट और आउटपुट ढूंढते हैं। तो ये क्या हो जाता है? यही आपका हो जाता है डेटा। ठीक है, ये आपकी हो जाती है एल्गो, और ये तो आपका आउटपुट है ही, इसे हम लोग कहते हैं प्रेडिक्शंस। ठीक है, बस ये होती है आपकी मशीन लर्निंग, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बस पूरी कहानी है, और कुछ नहीं है कहीं पर। ठीक है, अब इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं कि आपके पास बेसिकली 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मशीन लर्निंग में 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक होती है रिग्रेशन, ठीक है। मोस्टली 2 तरह की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, 2 ही तरीके की होती हैं। इन्हीं के ऊपर हम लोग सारा खेल खेलते हैं। क्लासिफिकेशन वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको बताना पड़ता है कि ये क्या है। मतलब आपने एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपने फोटो दी कोई, तो आपने फोटो में बताना है कि ये ह्यूमन है, एनिमल है, शेप है, क्या है। मतलब आपके पास लिमिट फिक्स हो जाती है। जैसे
मान लीजिए आपने एक एल्गोरिथम बनाई जो बताता है कि भाई फोटो में ह्यूमन है कि नहीं है, ह्यूमन प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास एक फोटो हो जाएगी, आपके पास क्या इनपुट, आपके पास अपना मॉडल हो जाएगा, और यहां पर आपके पास एक आउटपुट आएगा। अब आउटपुट में सिर्फ दो चीजें आएंगी, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है ह्यूमन प्रेजेंट है, फॉल्स का मतलब है ह्यूमन प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन है आउटपुट में, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। जहां पर भी आपके पास आउटपुट लिमिटेड है वो आपकी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें एक एग्जांपल और है कि जैसे आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं कि यहां पर कोई पर्सन खड़ा है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, राइट। इस तरह की इमेजेस आपने देखी होंगी जो बैकग्राउंड रिमूव करती होंगी। तो ये प्रॉब्लम भी क्लासिफिकेशन है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आपने एक इनपुट दिया, ठीक है, आपकी जो इमेज होती है वो किससे बनी होती है, पिक्सल से। पिक्सल्स आपके समझ लो कि एक आपकी जो इमेज होती है वो बेसिकली मैट्रिक्स होती है, और इस मैट्रिक्स में कुछ नंबर लिखा होता है। मान लो 255 लिखा, तो 255 का मतलब होता है व्हाइट, 0 का मतलब होता है ब्लैक। आपकी इमेज कंप्यूटर में ऐसे लिखी जाती है। तो अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, आप खाली इस इमेज में ये बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आप खाली ये बता रहे हो कि ये पिक्सल, जो ब्लू वाले पिक्सल है, ये क्या है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। ब्लू वाले पिक्सल्स बैकग्राउंड है, और जो ग्रीन वाले पिक्सल्स हैं वो आपके फोरग्राउंड है जिसमें इमेज है। तो अब अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो आपने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बताई जिसने बता दिया कि नहीं, ये जो ब्लू वाले हैं ये सब बैकग्राउंड है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये खाली चेक कर रहा है कि जो आपकी एल्गोरिथम है वो सिर्फ ये चेक कर रही है कि ये वाला जो पिक्सल है ये बैकग्राउंड ट्रू है कि बैकग्राउंड फॉल्स है। अगर ट्रू आया तो मैंने ब्लू से मार्क कर दिया, अगर फॉल्स आया तो मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। तो यहां पर अब मैं पूरी इमेज की जगह उसके हर एक पिक्सल पर क्लासिफिकेशन लगा, क्या वो बैकग्राउंड है या वो बैकग्राउंड नहीं है। तो यहां पर भी हमारा आउटपुट क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आउटपुट आपका फिक्स रहता है, और इसीलिए इसे हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि वहां पर क्या आएगा। तो ये आपकी हो गई बैकग्राउंड की, सॉरी, बैकग्राउंड रिमूवल भी आपकी तरह से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब आपने ये देखा होगा कि चैट जीपीटी या फिर वहां पर इन सब में क्या होता है कि आप पूछते हो कि बताओ इस इमेज में क्या क्या है, ठीक है। तो वो बताता है कि इस इमेज में एक पर्सन खड़ा है, एक यहाँ पर उसका खिलौना कुछ रखा है, या फिर बाइक रखी है उसकी, ठीक है, या फिर उसकी बाइक है, तो इसमें एक बाइक है और एक ये है। तो अब ये क्या करता है, अब ये खाली फाइंड करता है कि क्या क्या चीजें हैं। तो पहले बताता है क्या उसमें पर्सन है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। बाइक है, हाँ है, क्लासिफिकेशन। तो ये भी क्लासिफिकेशन ही चल रहा है। तो जहां पर भी हमें बताना पड़े कि क्या चीज है, वो चीज क्या हो जाती है, क्लासिफिकेशन। और दूसरी प्रॉब्लम होती है आपके पास रिग्रेशन की। सही से लिखता हूं, REGRESSION, रिग्रेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन क्या होता है, ये आपका होता है बेसिकली कितना। कितने का मतलब है कि यहां पर आपके पास आउटपुट जो होगा वो हो जाएगा अनलिमिटेड, ठीक है। मतलब जैसे आपको किसी की सैलरी बतानी है, जैसे आपको किसी की इनकम, सॉरी, किसी की एजुकेशन, लोकेलिटी, ये सब देखकर आपको बतानी है कि उसकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी तो भाई कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 100 करोड़ तक हो सकती है। तो यहां पर आपके 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 100.5 भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स कहते हैं रिग्रेशन। आपको हाउस का प्राइस बताना है उसकी लोकेलिटी देखकर, तो ये भी रिग्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस दो मेन प्रॉब्लम्स होती है आपके पास, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। और मशीन लर्निंग की 3 टेक्निक्स होती हैं बेसिकली। 3 टेक्निक्स क्या होती हैं, ये आपने शायद देख सुना होगा कहीं पर नहीं सुना है तो बता देता हूं। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट।
ठीक है, इसका डिफरेंशियल तरीका क्या है कि इनपुट भी आप दोगे, आउटपुट भी आप दोगे, बस। अनसुपरवाइज में क्या है, इनपुट आप दोगे, आउटपुट वो अपने आप निकालेगा। आउटपुट मतलब कि ऑटोमेटिकली। रीइंफोर्समेंट में आप क्या दोगे, आप इसे एक एरिया दे दोगे और कुछ रूल्स बता दोगे, ठीक है, और आप इसके लिए कोई फंक्शन लिख दोगे और ये क्या करेगा, ये आपको बता, आप जैसे बता दोगे भाई कि जैसे मुझे एक गेम बनाना है, आपने एक रोबोट छोड़ दिया एक एरिया में, और रोबोट का काम है कि उसे फर्स्ट आना है, या फिर यहां से स्टार्ट किया है और उसे यहां पर पहुंचना है ट्रायंगल वाली लोकेशन पर। तो अब रोबोट राइट जाए कि लेफ्ट जाए कि टॉप जाए कि बॉटम जाए, रोबोट इन चारों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। अब रोबोट का काम है यहां से यहां तक पहुंचना, खाली इन चारों चीजों को ट्राई करते रहना, और जब जहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद उसे एक पाथ बना देना, ठीक है। तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज में इनपुट आउटपुट हम देते हैं, अनसुपरवाइज में इनपुट देते हैं आउटपुट नहीं देते। रीइंफोर्समेंट में हम खाली बता देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी ये फील्ड है, तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, तुम ये कर सकते हो, बट तुम्हें ये गोल अचीव करना है, तो तुम कैसे अचीव करोगे, ठीक है। तो ये तीन आपके पास बेसिकली सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट होती हैं, और इन्हीं से सारी कहानी चलती है, ठीक है। अब जैसे अब ये आपके पास एल्गोरिथम हो गई। अभी ये सब बात कर रहे थे हम लोग मशीन लर्निंग की, ये मशीन लर्निंग के टॉप लेवल कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आपके पास मशीन लर्निंग में एक कहते हैं क्लासिकल मशीन लर्निंग, क्लासिकल एमएल, फिर एक आ गया है डीप लर्निंग, ठीक है, और अब आ गया आपके पास जेन एआई। तो इसको आप ऐसे समझो कि ये जो पूरा बड़ा बॉक्स है ये है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग का एक पार्ट है जेन एआई, ओके। वॉइस नहीं आ रही है, तो इस तरह से ये समझ लो कि ये सुपर सेट है मशीन लर्निंग, उसके अंदर डीप लर्निंग है और उसके अंदर जेन एआई है। तो ये जो क्लासिकल मशीन लर्निंग है, क्लासिकल मशीन लर्निंग में आपकी पुरानी एल्गोरिथम्स आती हैं, इसमें सब आपकी आ जाएगी लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ठीक है, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एंसेंबल। एंसेंबल क्या होता है, इन्हीं सबका कुछ मिक्स कर एक साथ ले आओ, ठीक है, और एसवीएम, और इस तरह की बहुत सारी हैं। तो ये सब अच्छा काम करती थी, बट उतना अच्छा काम नहीं करती थी, क्योंकि ये सारी एल्गोरिथम्स छोटे डेटा पर भी काम कर लेती थी, ओके, छोटे डेटा पर भी काम कर लेती थी, बट उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी हमारे पास। तो यहां पर अब क्या होता था, फिर 2008-9 में ही स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर थी ली फेफे FEI, इसने एक कंपटीशन शुरू किया, उसमें उसने 1 मिलियन इमेजेस, मतलब 10 लाख इमेजेस क्रिएट करी, या उनको लेबल किया, बोला कि इसके अंदर पर्सन है, इसके अंदर डॉग है, इसके अंदर कैट है, इसके अंदर एरोप्लेन है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जब इतना डेटा आया तभी इसके ऊपर जब डीप लर्निंग लगाई गई, जो 2012 में जो पहला कंपटीशन विनर हुआ था एलेक्स क्रेजेस्की करके, तो जब उसने डीप लर्निंग लगाई तो देखा कि डीप लर्निंग जो है ये ह्यूज डेटा पर आउट परफॉर्म कर जाती है ह्यूमन को भी, कि फोटो में क्या है ह्यूमन से भी अच्छा आपकी एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम बता रही है, ह्यूमन नहीं पहचान पा रहा है, ह्यूमन गलती कर देता है, वो सब चीजें हैं। तो डीप लर्निंग में फिर आपके पास एल्गोरिथम्स आई, तो एक इमेज के साथ काम करने के लिए एल्गोरिथम्स आई CNN, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए आपके पास आई RNN या फिर LSTM,
मतलब LSTM RNN का ही वर्जन है और गुरु ये LSTM का वर्जन था। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते थे? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। LSTM हो जाता था लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और गुरु हो जाता था गेटेड रिकरेंट यूनिट, रिकरेंट यूनिट, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो इमेज डीप लर्निंग इमेजेस से काम करने के लिए CNN आई और इनके लिए LSTM आई। तो LSTM इतना अच्छा काम कर रही थी कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक सेकेंड। आंद्रे कारपति LSTM तो अभी जो आजकल आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग आजकल देख रहे हो ना कि चैट जीपीटी कुछ भी लिख देता है, तो इसकी जो बेस है वो है RNNs में। ठीक है, तो ये एक ब्लॉग है, आंद्रे कारपति का ब्लॉग है। इस बंदे को फॉलो करना अगर आप लोग मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हो। ये फीफी ली जिसका मैंने एग्जाम्पल, ये आपको ब्लॉग दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। तो ब्लॉग में आंद्रे कारपति बंदा था, ये फीफी ली के साथ था टीम में। फिर ये अपना इसने काम किया, फिर ये टेस्ला का AI का हेड बना था, जो टेस्ला की गाड़ियों में सेल्फ ड्राइविंग कार आता था, उसमें इसने काफी काम किया। फिर अभी ये यूट्यूब पे कोर्सेज मतलब कुछ पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो इसका जरूर देखना। तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि इसने 2014 में RNN का यूज करके, ठीक है, कैसे इसने शेक्सपियर के सारे वो दे दिए और इसने RNN से कहा कि तुम शेक्सपियर लिखो, मुझे एक कुछ टेक्स्ट लिख के दो शेक्सपियर की लैंग्वेज में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये, क्योंकि शेक्सपियर ने बेसिकली प्लेज लिखे थे, तो प्लेज में कौन बोल रहा है, नाटक लिखे थे कि तो नाटक में कौन बोल रहा है, उस फॉर्मेट में इसने लिखना शुरू कर दिया अपने आप। तो 2013-14 की बात है। ये ब्लॉग अगर देखो तो 2015 की बात है। मैं 21/2015 में इसमें ब्लॉग लिखा है, आज से 10 साल पहले। आज हम लोग एकदम चैट जीपीटी को देखकर मतलब कि परेशान हो जाते हैं कि क्या कर दिया इसने, बट ये काम है 2014-15 में भी कर रहा था। हाँ, इतना अच्छा नहीं क्यों नहीं कर रहा था या क्यों उस टाइम फेमस नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर इसने विकिपीडिया का इनपुट दिया, बोला कि इस तरह से लिखना शुरू करो। तो उसने विकिपीडिया में लिंक्स बनाने लग गए। विकिपीडिया में लिंक्स होते हैं आपके डबल स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। ठीक है, फिर इसने ज्योमेट्री का दिया इनपुट, तो उसने ज्योमेट्री भी लिखने लग गया। ठीक है, इसने कोडिंग, चैट जीपीटी से हम कहते हैं तुम मुझे कोड लिखकर दिखाओ, तो वो कोड कहां से लिख रहा है? वो कोड LSTM वाला ही कॉन्सेप्ट है, RNN वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो वो सब काम 10 साल पहले हो चुका था। ठीक है, नंबर्स, नेम, सब कुछ कर रहा है। तो फिर इसने एग्जांपल दिखाया है कि ये देखो कि ये कैसे प्रिडिक्ट करता है। तो जब ये प्रिडिक्ट करने जा रहा है तो वो देख रहा है कि लास्ट उसको किस चीज पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉग पढ़ना है, ब्लॉग मैं लिंक दे दूंगा। जैसे ये जो रेड क्या है, ब्लू क्या है, ये सब चीजें हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग है। ठीक है, और इसी का यूज करके फिर मैंने उस टाइम किया था 2015-16 मैंने उसे रामायण दे दी और मैंने कहा कि चलो तुम अब रामायण की चौपाइयां लिखो। तो वो चौपाइयां लिखने लगा था, राम जी, सीता जी, इन सब का यूज करके। तो ये सब काम 2014-15 में शुरू हो गया था। ठीक है, तो हुआ क्या, ये काम कैसे करता है मैं इसका दिखाता हूं आपको। एप्लीकेशन विंडो एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं वापस आ गया हूं अपने ब्लैक वाली स्क्रीन पर। तो अब होता क्या है, आपके फोन में याद करो जब फोन मतलब 15-16 तक आ ही गए थे, स्मार्टफोन तो अच्छे खासे आ गए थे। तो उस टाइम गूगल का टाइपिंग वाला आता था कि आप कुछ टाइप करो फोन में, कि अगर आप कुछ टाइप करो, जैसे आपने लिखा आई, तो नेक्स्ट वर्ड आ जाता था विल, कि आई विल बी लेट और आई विल डू समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन काम करता था। तो जो आज के टाइम में जेन AI की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन।
बस, और कुछ नहीं। ये आपका काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन पर, कि इसे खाली आपने कुछ स्टार्ट दिया और इसने प्रिंट कर दिया नेक्स्ट वर्ड क्या है। आपने आई लिखा तो बोला विल, या फिर जैसे ही आपने लिखा आई, इसके पास अब मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल, आई विल, आई लव, आई वर्क, आई गो, आई डांस। ठीक है, ऐसे करके इसके पास खूब सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे ही आपने उसे पहला वर्ड दिया, इसके पास खूब सारे ऑप्शंस आते हैं। अब इन सारे ऑप्शंस में से इसे एक ऑप्शन चूज करना है। ये सिर्फ एक ही वर्ड प्रिंट कर रहा है, अब इसे एक ऑप्शन चूज करना है। तो ये कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? तो ये चूज करेगा, ये क्या करता है कि जैसे ही आपने उसे इनपुट दिया, वो हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालता है। जैसे विल की प्रोबेबिलिटी उसने निकाल दी 0.9, लव की निकाल दी 0.8, वर्क की निकाल दी 0.6, गो की निकाल दी 0.1, डांस की निकाल दी 0.01, और इसी तरह सबकी निकाल दी। तो अब ये इसमें से कौन सा वर्ड चूज करेगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बस। जितने भी आपके एलएसटीएम भी है वो भी इसी पे काम करता था, जेएनएआई है वो भी इसी पे काम करता है। ये मतलब बेसिक मैं बता रहा हूं आपको कि नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्ट करनी है और कुछ नहीं। जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका प्रोबेबिलिटी, आपकी वही वर्ड वो नेक्स्ट अपने आप प्रिडिक्ट कर देगा। अब आपके पास इनपुट क्या हो गया? अभी तक इनपुट था आई, अब आपके पास इनपुट हो गया आई विल। ठीक है, अब आई विल पे क्या होगा? अब फिर से ये 10 ऑप्शन या 100 ऑप्शन जनरेट करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। तो जैसे मान लो यहां पर आ गया गो, गो की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई हो गई। अब नेक्स्ट वर्ड क्या, अब इनपुट क्या हो गया? आई विल गो। अब इस वर्ड के हिसाब से, इस इनपुट के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड की जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो तो वो निकाल, आई विल गो टू, या फिर नाउ। तो इसने देखा कि 2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नाउ की इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो ये क्या कर देगा? नेक्स्ट इनपुट क्या हो जाएगा? आई विल गो टू, और फिर वर्ड्स। बस यही प्रोसेस चल रही है। अब आप ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगा ये? तो एकदम सही सवाल है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगा? एलएसटीएम को ट्रेन करने के लिए याद करो, जब मैंने कहा कि उसने शेक्सपियर के प्लेस दे दिए ना, शेक्सपियर के प्लेस दे दिए, उसमें हजारों वर्ड्स होंगे, मतलब कि मान लो कि 100,000 वर्ड्स थे, 100,000 वर्ड्स थे। उन वर्ड्स में कुछ वर्ड्स साथ साथ आते थे, जैसे आई के साथ विल आता था। आई के साथ विल आया है आपके पास, मान लो कि टोटल, सॉरी, आई विल, मान लो ये कॉम्बिनेशन टोटल 100 बार आया है शेक्सपियर के प्लेस में। उसमें आई और विल आए हैं 80 बार, और आई और लव आए हैं 20 बार। ठीक है, तो विल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 80/100। लव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 20/100। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई? विल की हो गई। तो नेक्स्ट वर्ड ये क्या प्रिडिक्ट करेगा? तो जो आपने उसको इनपुट दिया था, शेक्सपियर के सारे प्लेस दिए थे, वो उसने पढ़ डाले, प्रोबेबिलिटी उसने कैलकुलेट करके रख ली। अब वो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपकी पास, प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही पूरा गेम खेल। ठीक है, तो ये एलएसटीएम आरएनएन ने कर लिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी इसमें कि एलएसटीएम, आरएनएन, ये सब जैसे जैसे आपका टेक्स्ट बढ़ता जाता था, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाता था, इनकी परफॉर्मेंस डिटेरिएट होने लगती थी, मतलब कि इनकी परफॉर्मेंस गिरने लगती थी, ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। ये अब क्योंकि हो सकता है कि यहां पर जो वर्ड है वो इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से यहां पर वर्ड आने वाला होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से। जैसे आपने लिखा राम गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप, फिर अब यहां पर आना चाहिए, यहां पर ही आएगा कि शी आएगा?
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर राम लिखा है कि यहां पर सीता लिखा है। अगर राम लिखा है तो ही होगा, सीता लिखा है तो शी होगा। तो आरएनएन और एलएसटीएम में क्या होता था, ये ज्यादा पीछे तक देख नहीं पाता था और इसीलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। मतलब ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, बट मान लो यहां पर इसके पहले 15 लाइनें हैं, तो 15 लाइन में किसके ऊपर ध्यान देना है, वो ध्यान देना ये लोग नहीं कर पाते थे। इसीलिए ये परफॉर्म तो करते थे बट उतना अच्छा नहीं करते थे। तभी 2017 में आया एक पेपर जिसमें एक नया मॉडल आया, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ये पिक्चर वाले ट्रांसफॉर्मर नहीं है ना, बिजली वाले हैं, ये मशीन लर्निंग वाले ट्रांसफॉर्मर है। और मशीन लर्निंग वाले ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, इसको एक ऐसी कैपेबिलिटी दे दी कि अब ये 50 लाइन पीछे भी जाके सोच सकता है, देख सकता है। ठीक है, वो 50 लाइन पीछे तक देख सकता है और इसी ने बदल दिया सारा खेल। इसी का यूज करके ये मॉडल दिया था गूगल ने, गूगल के साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने। ओके, और इसका यूज करके ओपन एआई ने एक बनाया जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग मॉडल। और जीपीटी ये क्या है, यही तो है आपका जीपीटी। इसने ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके लगाया और इन्होंने देखा, अभी तक क्या था कि मान लो कि आपको किसी टेक्स्ट को समराइज करना है, ठीक है, उसके लिए एक अलग मॉडल टॉप पर था। आपने देखा किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को मतलब कि उसमें से नेम्स निकालने हैं, उसके लिए अलग मॉडल था। मान लो इसके लिए मॉडल 1 था, इसके लिए मॉडल 2 था, ये सब दुनिया में वर्ड के थे। ठीक है, किसी में कुछ और था, उसमें वर्ड 3 था। जब जीपीटी आया, जब जीपीटी 1 आया, ठीक है, जीपीटी 1.5, इसने क्या किया, पूरे इंटरनेट, जीपीटी 1 ने अराउंड 40 GB ऑफ डेटा रीड की। जीपीटी 1 ने 40 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा, बहुत बड़ा होता है, वो देखा था। तो उसने देखा कि जीपीटी 1.5 इन सबको, पहले क्या था कि हर काम के लिए अलग मॉडल होता था, जीपीटी 1.5 या जीपीटी 2 इन सबको पिछाड़ दे रहा है, इन सब पीछे रह जा रहे हैं। अब हर काम के लिए जीपीटी मॉडल ही बेस्ट आ रहा है। ठीक है, तब उन्होंने जीपीटी ने 2019 में, मैं आपको एक वो दिखाता हूं, स्लाइड दिखाता हूं, एक सेकेंड। जॉन बेरीमैन, अर्लेंस लैब्स, जस्ट हाँ, जॉन बेरीमैन, अर्लेंस लैब्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गई स्लाइड? ओके, दूसरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। गया, ठीक है। तो जीपीटी 2 ने 40 GB ऑफ इंटरनेट टेक्स्ट देखा था, बट उन्होंने देखा कि ये सारे काम कर ले रहा है, प्रोनाउन समझ रहा है, मिसिंग वर्ड प्रेडिक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उन्होंने एक कर दिया था, 2019 में अपने ब्लॉग पे लिखा था कि ये मॉडल इतना अच्छा है कि लोग इसका यूज करेंगे, तो हम इसको नहीं रिलीज करेंगे, हम इसको नहीं यूज करेंगे। और इसी की वजह से काफी बवाल भी हुआ था उस टाइम कि आपने मॉडल बना लिया, आपने पब्लिक का डेटा यूज किया, तो आपको मॉडल रिलीज करना चाहिए, बट उन्होंने नहीं किया। फिर जीपीटी 3.5 में इन्होंने इसको रिलीज किया, लेकिन बहुत कम लोगों को। फिर 3.5 के सामने इन्होंने बस एक काम और किया, शेयर स्क्रीन एप्लीकेशन विंडो। हाँ, इन्होंने एक काम और किया, क्या किया, ये मॉडल था जीपीटी 3.5 और इसके आगे इन्होंने एक क्या दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स। बोला कि अब कोई भी इससे बात कर सकता है, और जैसे ही लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज डाला, ये इससे बात करता था, ये इसको रिस्पॉन्ड करता था, और अभी भी काम वही कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन।
और कुछ नहीं कर रहा है। जब कुछ नहीं देता था तो ये पुराने इसके जो उसने टॉक करी है उसके हिसाब से उठाकर ही खाली प्रिडिक्शन कर देता था। ओके, तो ये था काम आपका मेन जी जीपीटी का। ठीक है, अब इसके बाद एलएलएम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कौन सा टोकन प्रिडिक्ट करना है इसी के ऊपर बस काम कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है एजेंट। आजकल बड़ा चल रहा है, एजेंटिक कोड आ गया है। एजेंटिक कुछ नहीं है, अगेन एजेंट है कि नेक्स्ट टोकन ही प्रिडिक्ट करना है, बट अब यहां पर जो टोकन है वो क्या हो जाता है, वो किसी फंक्शन का नेम आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर एक ऐसा मॉडल बनाना है जो आपको वेदर बताए, ठीक है, तो आप पहले से एक फंक्शन लिख लोगे अपना कोई, जो आएगा कि गेट वेदर, और इसमें आप क्या दे दोगे, लोकेशन। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन बना बनाया लिखा है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आपके एलएलएम का काम है इस फंक्शन को कॉल करना, रन करना। अब ये फंक्शन मान लो आपको दे दिया कि लखनऊ में आज का वेदर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एलएलएम का काम है इस फंक्शन को रन करना और इस 24 डिग्री को निकालकर फिर लिखना कि द वेदर इन लखनऊ इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एजेंट, और कुछ नहीं है। अब एलएलएम को आपको खाली फंक्शनलिटी दे दी कि भाई कि वो वेदर भी कर ले। ठीक है, तो अब देखो मैंने लिखा आई, नेक्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा, विल आएगा, लव आएगा, क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर हम कौन सी एल्गोरिथम चल रही है, सॉरी कौन सी प्रोसेस चल रही है, क्लासिफिकेशन की, क्योंकि आपके पास इनपुट फिक्स है। यहां पर सिर्फ वर्ड ही तो आ सकते हैं। मान लो कि इंग्लिश लैंग्वेज में 1 लाख वर्ड है, आउटपुट क्या है, एक, इन 1 लाख में से कोई एक वर्ड ही तो आएगा। तो यहां पर भी काम क्या चल रहा है, क्लासिफिकेशन का ही चल रहा है। तो एलएलएम आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनपुट पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे तक देख सकते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए। ओके, क्वेश्चन क्या आए हैं, सर वी हैव टू गो फॉर लंच। हाँ यार मुझे भी लंच जाना है, बस 10 मिनट की बात और है, उसके बाद काम खत्म है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इन सब चीजों से? कुछ अभी लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन विंडो, सर कुछ डीप सीक वगैरह के बारे में सर क्या हुआ था, मतलब? हाँ, डीप सीक के बारे में बात करते हैं। क्या है, वाई डीप सीक मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ, मैं इसी का एग्जांपल ही दिखाने जा रहा था। एप्लीकेशन विंडो ये कहाँ गई, ये आपको दिख रहा है, रेप्लिकेट की वेबसाइट दिख रही है, रेप्लिकेट की वेबसाइट। यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये एक वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे आजकल के लेटेस्ट मॉडल्स हैं जन एआई वाले। तो होता क्या था कि जो पहले बेसिक मॉडल्स आए थे, ठीक है, जैसे आपका जो चैट जीपीटी का ओरिजिनल वर्जन था, वो सब रीजनिंग नहीं कर सकते थे। उनमें क्या होता था कि अगर आप पूछोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, कल लामा में मैंने कुछ किया, देखिए प्रेडिक्शन चल रहा है, सॉरी ये नहीं है, लामा का ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब। सो लामा आपका फेसबुक का मॉडल है। ठीक है, अब देखो जो आपने इनपुट दिया है वही चैट जीपीटी ये सब खाली वही काम कर सकता है। जैसे मैंने से पूछा कि यूजिंग ओनली एन एडिशन हाउ डू यू ऐड 8 8s एंड गेट द नंबर 1000। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा उससे। अब इसने आंसर क्या दिया, दैट्स अ क्लासिक मैथ पजल, हियर इज ओनली वन वे टू ऐड 8 8s टू गेट 1000 यूजिंग ओनली एडिशन, कि आप 888 प्लस 88 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कर लेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। अब इसने पूछा कैन यू स्पॉट द ट्रिक। ये तो मैंने इससे बोला नहीं, मैं तो इससे पूछ रहा हूं ना इसका सोल्यूशन क्या है। तो हुआ क्या कि अगर मैं पूछूंगा रीजनिंग मैथ पजल्स, ठीक है,
हाँ शायद इसमें है कि नहीं है, नहीं है। असल में क्या था कि इसने क्योंकि इंटरनेट से डेटा रीड किया हुआ है, तो उस इंटरनेट के डेटा में क्या था कि इस क्वेश्चन के आगे ये लिखा था कैन यू स्पॉट द ट्रिक। तो इसने क्या दिखाया, इसने प्रोबेबिलिटी देखी, किसने आउटपुट दे दिया। अब इसके बाद ट्रिक क्या है इसमें, अब इसने जो जो जिस डेटा से इसने ट्रेनिंग करी थी उससे इसने देखा कि उसके नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, कैन यू स्पॉट द ट्रिक, इसने ये यूज कर लिया। अब चैट जीपीटी ने एक मॉडल बनाया, नहीं बट आप रीजनिंग भी कर सकते हो। मतलब अब यही काम अगर मैं डीप सीक से पूछता हूं, ठीक है, यूजिंग ओनली एन एडिशन, जैसे मैं डीप सीक चलाता हूं मॉडल्स, बस 5 मिनट और है, 1 सेकंड, डैशबोर्ड, डीप सीक आया, ठीक है। तो डीप सीक क्या है, ये एक रीजनिंग मॉडल है। तो जैसे मैं इससे पूछूंगा यूजिंग ओनली एन एडिशन हाउ डू यू ऐड 8 8s एंड गेट द नंबर 1000, अब ये दिमाग लगा रहा है क्या। अभी देखो ये ना पूरा लिखा रहा है कि भाई 8 times 8 is 64, राइट, वेट, नो, दैट्स मल्टीप्लिकेशन, आई इफ आई ऐड 8 times, तो ये पूरी रीजनिंग कर रहा है, सोच रहा है कि, फिर इसने सोल्यूशन निकाल के आ गया कि 888 प्लस 888 प्लस 8888 ऐसे करके, तो ये सोच के लाया। चैट जीपीटी का भी ये मॉडल था, ये करके ओवन करके, वो भी रीजनिंग करता था। तो रीजनिंग ये लोग कैसे करते थे कि अगर मैं इसी में लगा दूं, ठीक है, अब यहां पर मैं सेम चीज लामा को दूंगा, बट इसके आगे मैं क्या दे दूंगा, अब ये सोच ही रहा है, सोच सोच के आंसर ले आएगा, बट एक अच्छा एग्जांपल देगा, ठीक है, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख देता हूं लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो अब देखो, अब ये सोच रहा है, ये रीजनिंग कर रहा है। अब इसने वो चीज नहीं लगाई जो इसने कॉपी कर लिया था प्रोबेबिलिटी निकालकर, प्रोबेबिलिटी अभी भी लगा रहा है, बट अब ये प्रोबेबिलिटी सोच के लगा रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ ट्यूनिंग करी होती है कि आपको इस तरह से सोचना है। सोचने का मतलब क्या है कि इस तरह के एग्जांपल्स उसने दे रखे होंगे, मैं आप लोग को लिंक्स दे दूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। टाइम हमारे पास कम है तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, बट ये भी देखो रीजनिंग करके ले आया कि क्या हो जाएगा, 888 प्लस 88 प्लस 8888 इक्वल टू 1000, ठीक है। जेन एआई का यूज करके मैंने एक मॉडल बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूं। जो आप लोगों ने फोटो मेरी देखी होगी चैट पे, वो मैंने कैसे जनरेट करी है, एक सेकेंड, एक लास्ट एग्जांपल है, मॉडल्स, ये मैंने हेडशॉट करी थी, तो मैं यहां लिख दूंगा माई फेस इन प्रोफेशनल सेटिंग इन अ क्लास अटेंडिंग लेक्चर, ठीक है। मैंने असल में इसको अपनी इमेजेस दे दी थी, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा चेहरा लगाकर मुझे क्लास की सेटिंग में फिट कर देगा। तो ये जेन एआई का हमारा कुछ एग्जांपल्स है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ है, एवरीवन प्लीज फिल अटेंडेंस, ठीक है। तो ये देखो मैं क्लास में बैठा हूं, अभी मेरा मोटा दिखा रहा है, मैं थोड़ा पतला हो गया हूं, बट एक क्लास की सेटिंग में बैठा हूं, ठीक है। मैं इसमें ये भी कर सकता हूं वियरिंग अ टी शर्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट तरीका वही है कि आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। वाह, मुझे लड़की बना दिया, तो बहुत सही चीज हो गई। अब इसके पास जो इनपुट होगा, तो वियरिंग अ टी शर्ट होगा, तो हो सकता है कि शायद मेल वाला ना हो, या उसने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई कि मेल होगा कि फीमेल होगा, उसने मुझे फीमेल बना दिया। लाइव, हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो मुझे इसने टी शर्ट में बैठा दिया है क्लास में, एक दूसरी टी शर्ट जो मैंने आज पहनी भी नहीं है। तो ये सब चीजें जेन एआई में हो जाती हैं। चलो अब हाँ, सोरा एआई जनरेट वीडियो फ्रॉम प्रॉम्प्ट एंड हाउ टू यूज रियल वर्ल्ड फिजिक्स।
सोरा के बारे में हम बात अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 10 ही मिनट बचा है, कुछ अनाउंसमेंट्स भी करनी है, बट मैं आप लोग को लिंक्स दे दूंगा, आप डिफ्यूजन मॉडल के बारे में और पढ़ सकते हो कि डिफ्यूजन मॉडल कैसे काम करते हैं। ठीक है, जस्ट एक चीज और है, एक सेकेंड बस। क्लास ऑलमोस्ट एंड है, हाँ मतलब अभी एक अनाउंसमेंट और करनी है। जो लोग रुके हैं प्लीज अपना अटेंडेंस और फीडबैक फॉर्म भर देना, सर्टिफिकेट्स उसी के बेसिस पर ही मिलेंगे। और अनाउंसमेंट क्या है, ओके एक सेकेंड, ओके स्क्रीन शेयर एप्लीकेशन विंडो। सो मैं जेएस टेक्नोवा के साथ मतलब उनके अंडर ही एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जो बेसिकली होगा आपका डीप लर्निंग और एलएलएम्स के ऊपर। ठीक है, क्लासेस हमारी स्टार्ट से 7 से शुरू होंगी और ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स चलेंगी। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे पाइथन और मतलब पहला मंथ जाएगा फाउंडेशंस ऑफ डीप लर्निंग में, इसमें हम देखेंगे पाइथन और पाइटॉर्च के बेसिक्स। मैं सिर्फ एक करिकुलम बता रहा हूँ क्या क्या होगा। पाइथन आप लोग को तो अगर पहले से आती है अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको और लेक्चर दे दूंगा, आप सीधे उसे पढ़ सकते हैं कैसे काम करता है। पाइटॉर्च के फंडामेंटल्स हम लोग सब पढ़ेंगे और कैसे उनसे डीप लर्निंग का यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। मेरा पहला ही काम रहेगा कि आप पहले दिन से ही अपने प्रोजेक्ट को लेकर शुरू करो। थ्योरी उतनी ज्यादा नहीं होगी, प्रैक्टिकल ही ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे काम करता है कैसे करता है। तो पहला हो जाएगा कि इमेज क्लासिफायर वगैरह मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, उसमें हम लोग चेस्ट के एक्सरेज को रीड करना, उनसे निमोनिया पता करना कैसे करते हैं नहीं करते हैं, ये चीजें होंगी। उसके बाद फिर हम लोग डीप लर्निंग में ही सीएनएन्स के बारे में डीप में पढ़ेंगे कि जो सीएनएन्स कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग कि कैसे आप लेस जीपीयू पावर से काम कर सकते हैं और रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आप कैसे बना सकते हैं योलो मॉडल या फिर फास्टर आरसीएनएन मॉडल यूज करके। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एनएलपी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी तक आपने सीखा इस यहां तक होगा सिर्फ इमेजेस के ऊपर, इसके बाद होगा कि टेक्स्ट के ऊपर काम कैसे करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करना है, फेक न्यूज डिटेक्टर कैसे बनाने हैं, ये एक प्रोजेक्ट रहेगा, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। और फिर आएंगे हमारे पास लास्ट में आएगा गैन्स जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, जिसमें इमेज पहले कैसे जनरेट होती थी और इसी का ट्रांसफॉर्मर का यूज करके कि अब कैसे इमेजेस जनरेट होती हैं, जो आपका डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग एलएलएम्स के ऊपर पूरा पढ़ेंगे कि कैसे एक एलएलएम को उठाकर एलएलएम को ट्यून करना, एलएलएम को यूज करना और एलएलएम का यूज करके ऐप बनाना। और फाइनली हमारे पास लास्ट के 2 वीक्स में कोई ना कोई एंड टू एंड एआई एप्लीकेशन बना सकते हो, जो भी आप चाहो देखना चाह सकते हो। मतलब ये आपकी भी हो सकती है, नहीं तो मैं तो एग्जांपल दे ही दूंगा कि क्या करने हैं। मैं जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, तो एक प्रोजेक्ट है कि कौन स्टूडेंट क्लास में किस लेवल पे काम कर रहा है, इसके ऊपर है। एक प्रोजेक्ट है, मैंने आपको रिसीप्ट वाला बताया था। अगर आप यूज करना चाहो तो ये मैंने शायद अपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट किया था कि आजकल कोई एलेक्सा नहीं बना रहा है। बीच में एलेक्सा बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, एलेक्सा टाइप के जो वॉइस असिस्टेंट थे कि आप उससे कुछ पूछो और वो बता देता था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। अब इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके उन्हें बनाना और आसान हो गया और बेटर बनाना आसान हो गया। तो कोई उस पर क्यों नहीं बना रहा है, तो कोई चाहे तो वो भी बना सकता है। कल परसों मैंने क्या सोच रहा था, कल परसों मुझे कोई आइडिया आया था कुछ एक, तो चीजें देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम हैं, पूरी दुनिया बना रही है। और एलएलएम्स का यूज कैसे करना है, मैं शायद इस पर बाद में एक लेक्चर और यूज कर लूंगा कि चैट जीपीटी, क्लाउड, सोनेट या फिर आपका जो मेटा का लामा है, इन सबको आपको अपने रियल लाइफ में यूज कैसे करना है। अभी आप उससे पूछने जाओगे, आप उससे कोड मांगोगे, वो कोड आपको लिखकर दे देगा, बट वो कोड चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 90% केसेस में बाय डिफॉल्ट जो बेसिक कोड होगा वो चल जाएगा, बट जहां पर आपने कुछ उसमें एडिट करने की कोशिश करी वहीं पर वो ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो उसका यूज कैसे करना है, हो सकता है मैं इसके ऊपर एक लेक्चर कभी ले लूं, 1 घंटे का ही, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा।
तो ये है ये मेरे कंपनी का नाम है, बट ये कोर्स जेएस टेक्नोवा के थ्रू ही होगा, मतलब उनकी पूरा सपोर्ट रहेगा। लेक्चर मैं लूंगा। इस कोर्स की फीस अभी है 2000 मतलब 1999। जो फॉर्म दिया गया है उसमें ये चीज मेंशन है कि फीस है और आप क्यूआर वहां से कर सकते हो, फिर आप उसके अंदर अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना और मैसेज कर देना कि पेमेंट कर दी है, तो वो हम लोग फिर उसको फिल कर देंगे। अगर आप आज शाम तक करते हो तो 999 पड़ेगा सिर्फ। आज के बाद आप करते हो, मतलब संडे के बाद आप करते हो, तो फिर उसकी फीस पूरी 1999 जाएगी। ये है बेसिक्स, लॉजिस्टिक्स के हैं। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ, जो ग्रुप आप लोग का बना था, तो उस पर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन भी आप मतलब उस पर पोस्ट कर देना। मैं जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं रिप्लाई करता रहूंगा चैट के थ्रू, या फिर कोई ब्लॉग या लिंक अगर मैं आपके आंसर को शेयर कर सकता हूँ तो वो मैं कर दूंगा। ओके, 7 मिनट्स है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, या फिर शुभम, सोनू या फिर गुफरान कोई यूज करना चाहे। थैंक यू। आई होप कि आपको मतलब कि वीकेंड में कुछ शायद 2 घंटे में कुछ काम की चीजें मिली। या जितने लोग भी वर्कशॉप अटेंड किया है, तो पहले आप लोग जो अटेंडेंस फॉर्म है, अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सके। और जैसे सर ने बताया कि 7 मार्च से जेएस टेक्नोवा का एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आज आप शाम तक इनरोल करते हैं तो आपका 50% ऑफ रहेगा। अगर आज की बात करेंगे तो पूरा फुल रहेगा, और आप इंटरेस्टेड है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके, अगर कोई क्वायरी ना हो तो, अगर कोई क्वायरी हो तो चैट बोर्ड में आप लिख दीजिए, अदरवाइज व्हाट्सएप लिख कर सकते हैं। कल कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, करिए सवाल कुछ नहीं करना है। या आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, रिगार्डिंग हम लोग जो कोर्स ला रहे हैं उसके रिगार्डिंग हो या व्हाट्सएप के रिगार्डिंग हो। और आप लोग अगर जो सर्टिफिकेट उसको चाहिए हो, अगर अटेंडेंस फॉर्म भरेगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल पाएगा। अटेंडेंस फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। आज इवनिंग तक ही है 50% ऑफ। अगर आज के बाद आप लोग फॉर्म फिल उसमें बाकी एक चीज मैं और बस बोलना चाह रहा था कि मैं और लेक्चर्स वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ लेता रहूंगा, तो प्लीज जेएस टेक्नोवा से जुड़े रहें, तो मतलब आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। हाँ, और जो कोर्स करेगा, और अगर आप लोग जाके कैरियर पेज पे जेएस टेक्नोवा देखते रहिए, यहाँ पे अब इंटर्नशिप की भी आती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आती है, तो आप लोग जॉब यहाँ से जॉब आपको मिल सकता है। जेएस टेक्नोवा का प्रोफाइल पे आप लोग जाके वेबसाइट पे देखते रहिए। Oh my God. ओके, आप लोग मीटिंग लिव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू और गुड वीकेंड। The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.